and another is numerical based on the market value, or you can say dividend model calculation. For rest of the thing, you only study the concept and the formula for calculating various values. Question number 1. The current market price of a company's share is 90 and the expected dividend per share next year is 4.5. If the dividend is expected to grow at a constant rate of 8%, the shareholders required rate of return will be. You have to calculate the rate of return to shareholders. यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है कि कितना रिटर्न गेट होगा, क्या रेट होगी रिटर्न की. फॉर दिस वी ऑलरेडी स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडल, but before studying the numerical you must aware about all these three numericals. Formula 1 is zero growth model. First recall the formula which we already discussed. Zero growth model. In zero growth model, cost of equity means return on equity. Cost of equity or return on equity shares is equal to dividend divided by net proceed. What is the value of net proceed? Net proceed is equal to face value minus discount in case of discount, but if there is premium on issue, then plus premium minus flotation cost. Flotation cost means all the costs at the time of issue of shares, and this NP means amount received after issuing share, amount received at the time of issue. And then second one is constant growth model. Constant growth model. In case of constant growth model, the formula for calculating return or cost of equity is dividend after 1 year upon net proceed plus constant rate of growth, यानी कि Z. And third important concept is EPS approach, earning per share approach. In this we calculate cost of equity with the help of EPS divided by net proceed. Clear है? We already discussed these three formula while discussing the cost of the capital. Now you have to decide which formula is applicable in this situation. You have given current market price of the share 90 rupees, expected dividend per share next year 4.5. if the dividend is expected to grow at the rate of constant rate 8%, और आपको क्या निकालना है, रिटर्न. Which formula we will use in this? Which formula we are going to use in this numerical? 1, 2 or 3? This is constant growth, that's why we use formula number 2. Dividend after 1 year, and you have given dividend per share next year. You have given next year dividend, means dividend 1 is already given. Value of dividend 1 is 4.5. Net proceed means amount issue after selling a product or after selling the share or after issuing the shares. In this situation the share is already existing, that's why we take the market share value as a net proceed. Means the value of net proceed, or you can say NP, is 90. 4.5 divided by 90 plus growth rate is 8%. 8% means 0.08. Solve this value and then after that write the answer in the percentage. You will solve with your own way. Here I am showing you calculation with the help of calculator. You can use any way to solve the problem. 4.5
divided by 90, it gets 0.05 plus 0.08. Your value is 0.13. Value is 0.13. It means 13%. Your answer is option number D. Is this clear to all of you? Moving on, next numerical, question number 2. In case cost of capital is 10%, EPS rupees 10, IRR 8%, retention ratio is 60%, then the value of equity share as per Gordon model. Gordon model is relevant theory of dividend. There are two relevant theory. One is Gordon model and another is Walter model. So you have to calculate the value with the help of Gordon model. First, you must know the formula of Gordon model. According to Gordon model, value or price of share is E means EPS, 1 minus B, B means retained earning, KE means cost of equity, B means retention ratio, E means retained earning, and R means IRR. You have all the value in the formula, just put down and then find the value. EPS is 10, 1 minus retention ratio is 60% means 0.6 divided by KE cost of equity is 10%, 0.1, value of 10% is 0.1, then minus BR, B means retention ratio is 0.6 and your R is IRR rate, IRR means 8% means 0.08. Put all the value and find the solution. 10, 1 minus 0.6 means 0.4, you will get 4, 0.1 minus 8 6 are 48 and then decimal after 3 places 0.048. 4 divided by 0.1 minus 0.048. 4 divided by 0.052 and you will get, after dividing 4 to 0.052, you will get 76.92. It depends on the given option. We have given the approx value, means 77 is the right answer. Clear? Then moving on the next question. Question number 3. In previous year, only the numerical based on cost of the capital and dividend model came in various types of exam. So you only focus in this type of numerical and rest thing you do theory, application and formula. Don't waste your time to do another numericals. A firm has EBIT of rupees 50,000, market value of debt is 80,000 and overall capitalization rate is 20%. Market value of the firm under net operating income approach. There are 4 types of approach as we discussed in the last class also. Traditional approach, net income approach, net operating income approach and Mudgalani and Miller approach. Traditional approach and net income approach comes under relevant theory, means they states that value of the firm impacted by the capital structure of the firm. Net operating income approach and MM approach means Mudgalani and Miller approach are irrelevant theory. These theory states that there will be no impact on the value of the firm according to the capital structure of the company. So according to NOI, what is the market value of the firm? For this you use a specific formula. Value of the firm is equal to EBIT upon KO. You have given EBIT 50,000
ओवरऑल कैपिटलाइजेशन मीन्स weighted average cost of the capital, means the summation of all the capital, that is 20%, or you can write it as a 0.2. Market value of the firm under NOI approach, you have to calculate the market value and you have given market value of debt. First calculate the market value of the firm with the help of formula, means EBIT upon WAC. Here KO means WACC, weighted average cost of the capital, overall cost of the capital, overall capitalization means the same. Just put the value in the formula. EBIT is 50,000, WAC 20% means 0.2. When you will solve this equation, you will get 2,50,000. 50,000 divided by 0.2, then 2 2 ja 4, 2 5 ja 10. The value is 2,50,000. This is the overall, or you can say total value of the firm. You already given value of debt and we have to calculate the market value of the firm, means on the basis of equity. Therefore, market value of equity is 2,50,000, means total value of the firm minus value of debt. The value of debt is 80,000. 2,50,000 minus 80,000, answer will be 1,70,000. If you have any doubt, then you can ask. All clear? ओके तो सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, और वो भी कुछ ही स्पेसिफिक न्यूमेरिकल है जो कि पीजीटी कॉमर्स हो या नेट का एग्जाम हो, अगर एफएम कहीं भी आएगा तो एफएम में सिर्फ कॉस्ट ऑफ द कैपिटल और डिविडेंड और कभी कभी नेट इनकम अप्रोच से वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं। इसके अलावा कभी न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 4, शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 आर 80% पेड अप. The company declare a dividend of 50%, amount of dividend per share. First tell me, dividend is received on issued capital, subscribed capital, called up capital और paid up capital. किस पे dividend मिलता है? Paid up. हमेशा ध्यान रखना, dividend is always received on paid up, यानी कि शेयर होल्डर ने जितनी कैपिटल पे की है उसी पे डिविडेंड रिसीव्ड होता है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग कर चुके हैं कि डिविडेंड हमेशा किस पे रिसीव होता है, पेड अप कैपिटल पे, यानी कि जितनी शेयर होल्डर ने अमाउंट पे की है उसी अमाउंट पे उसे डिविडेंड मिलेगा। अब देखिए हमें डिविडेंड पर शेयर निकालना है। फेस वैल्यू है 10, डिविडेंड इस 10 में से कितना पेड अप कैपिटल है, 80%, और डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ है, 50%। तो हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में इसको निकालेंगे। वैल्यू है पर शेयर 10, उसमें से कितना परसेंटेज मिला है, सिर्फ 80%, और उसका भी डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ है, 50%। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, 10 रुपीज़ का 80% पेड अप, पहले पेड अप निकालिए, उसके बाद पेड अप का कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 50% डिक्लेयर हुआ है, यानी कि 50/100। तो कॉम्प्लेक्स में जाए बिना इसको नॉर्मली कैलकुलेट कर दीजिए। 50 2 जा 200, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका, ₹4 पर शेयर। डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने ₹4 पर शेयर। ये बताइए क्लियर है कि नहीं। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ABC लिमिटेड अंडर वाल्टर फॉर्मूला एंड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए कई बार क्या है, जो गोल्डन वाला फॉर्मूला है, गोल्डन फॉर्मूले को बोल देते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका गोल्डन मॉडल है उसको हम डिविडेंड ग्रोथ भी बोलते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज करके आपको आपका आता है तो हमेशा ये चीज़ें अपने माइंड में, कंसेप्ट में ध्यान रखना। ग्रोथ मीन्स गोल्डन मॉडल। तो आपसे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछी हुई हैं, और गोल्डन मॉडल का KVS में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। DSSB में तो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल का एक आधी बार ही आया हुआ है, बाकी बोर्ड में कभी कभी आया हुआ है गोल्डन और वाल्टर मॉडल।
तो डिविडेंड ग्रोथ मीन्स गॉर्डन मॉडल, और आपसे क्या पूछा है, वाल्टर मॉडल। तो सीधा सीधा सब कुछ आपको गिवन है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं एक बार फॉर्मूला रिकॉल कर रही हूँ एंड देन यू विल टेल मी द वैल्यू। वाल्टर मॉडल में क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू यानी कि प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस आर, आर मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR जिसे कहते हैं, डिवाइडेड बाय KE विद इन ब्रैकेट अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यह होता है आपका किसका फॉर्मूला, वाल्टर का। और गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉर्डन मॉडल प्राइस ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर 1 माइनस बी, बी इज रिटेंशन रेशो डिवाइडेड बाय KE, एक न्यूमेरिकल अभी पीछे मैंने कराया भी है इसके ऊपर बेस्ड, माइनस बी रिटेंशन रेशो, और आर मीन्स IRR। दोनों का कैलकुलेशन फटाफट मुझे करके बताइए क्या वैल्यू आ रही है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाल्टर एंड गॉर्डन न्यूमेरिकल इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई न्यूमेरिकल चूज करता है तो ये दोनों कंसेप्ट जो है फेवरेट कंसेप्ट है। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और क्या निकालना है, आंसर। पहले सेकंड वाला ट्राई कर सकते हो, सेकंड का फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, तो पहले सेकंड की कैलकुलेशन भी ट्राई कर सकते हो। आया आंसर सेकेंड का, प्राइस इज इक्वल टू EPS, EPS इज 5, 1 माइनस रिटेंशन रेशो, रिटेंशन वैल्यू इज 40% मीन्स 0.4, KE कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16% मीन्स 0.16, माइनस B, B is retention ratio and R is IRR, IRR is 20% means 0.2। हमारे पास क्या आ गया आंसर, 5 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 4 टू जा 8, 2 प्लेस के बाद डेसिमल 0.08, 6 5 जा 30 मीन्स 3, 0.16 माइनस 0.08, 0.08, पॉइंट रिमूव किया 2 0 आ गए, 300 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24, 8 7 जा एंड देन 8 5 जा। योर आंसर इज 37.5, 0.37.5। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 37.5%। आया आपका आंसर ये।
आर यू ट्राइंग द सॉल्यूशन? देखिए, ये अभी हमने जब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल किए थे वहाँ पे भी कंसेप्ट ये डिस्कस किया था, मैंने कल भी ये डिस्कस किया है। अभी मैं करने से पहले भी आपको बता दिया कि सिर्फ आपको अभी ध्यान रखना है, फॉर्मूला मैं आपको बता के चल रही हूँ कि आपको याद नहीं है तो, बट यू ट्राई टू मेक द सोल्यूशन। क्योंकि अगर आप इक्वेशन भी सोल्व करना नहीं जान पाओगे तो फॉर्मूला पता होने के बाद भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको फिर उसको ड्रॉप ही करना पड़ेगा। अभी ये क्लियर है जो मैंने सोल्यूशन किया है? हाँ जी, ये तो आप जो फॉर्मूला लर्न करोगे फॉर्मूले के साथ ये मेंशन है कि ई मीन्स अर्निंग पर शेयर, बी मीन्स रिटेंशन रेशो, के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बी मीन्स रिटेंशन रेशो, एंड हेयर आर मीन्स IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और यू कैन से रेट ऑफ रिटर्न एट विच NPV इज जीरो। IRR क्या होता है? जहाँ पे NPV क्या आता है? जीरो आता है, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें ना प्रॉफिट है ना लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये पिछले लेक्चर में तो थ्योरेटिकल में मैंने बार बार रिकॉल करा है, ये पहले जो पुराने लेक्चर FM के हुए हैं जहाँ पे डिविडेंड मॉडल डिस्कस किए हैं वहाँ पे फॉर्मूले के साथ इसका एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है। चाहे तो आप PDF ओपन करके भी देख सकते हो, PDF ओपन करना, जहाँ पे डिविडेंड मॉडल होंगे वहाँ पे 4 डिविडेंड मॉडल होंगे, एक होगा रेलेवेंट थ्योरी, एक इररेलेवेंट थ्योरी, उसमें ये मेरे सारा फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है। अगर वीडियो भी नहीं देखते हो तो PDF में एक बार देख के फॉर्मूला लर्न कर लेना, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको FM में किसी का भी न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल हम अटेम्प्ट करें तो सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ दी कैपिटल और सिर्फ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। इसलिए मैंने आज का दिन, आज मुझे नया कुछ शुरू करना था बट मैंने आज न्यूमेरिकल के लिए रखा ताकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल एक बार रिकॉल हो जाएगा तो आपको कंसेप्ट भी रिकॉल हो जाएंगे, प्लस थोड़ा सा न्यूमेरिकल करने का तरीका भी पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें न्यूमेरिकल करनी है। चलिए दूसरा वाला सोल्व करते हैं। क्योंकि आप वेरियस पेपर्स देखोगे, अगर कभी कभी भी FM में से उठाएगा तो वो ज़्यादातर इन्हीं न्यूमेरिकल को उठाएगा, बाकी तो FM के न्यूमेरिकल देना ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके लिए PVF टेबल चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो किसी भी टाइप की कोई टेबल नहीं है। अगर देगा तो सीधा उन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देगा, भाई इनफ्लो ये है, आउटफ्लो ये है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करिए। तो वो तो बिल्कुल सीधा सीधा अगर आपने थ्योरी पढ़ी है। एक बार आप लोगों ने, अभी बीच में ब्रेक था, FM के सारे नोट्स रिवाइज किए? आई डोंट थिंक कि खोले भी हैं आप लोगों ने। FM के नोट्स रिवाइज किए? क्योंकि रिवाइज करोगे मल्टीपल, देखिए कराने वाले को टाइम नहीं लगता, आपको बार बार उसको देख के अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा। पढ़ा समझ आने में कितना टाइम लगता है, लेकिन आपको जितनी टाइम हो सके उतनी टाइम उसको रिवाइज करो, तभी जाके ये चीज़ें हो पाएंगी। अब इसमें पुट करते हैं वॉल्टर में। मैंने आपको कहा कि फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ द इक्विटी प्लस R अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के ई। R मीन्स IRR, के मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, E मीन्स अर्निंग पर शेयर, D मीन्स डिविडेंड। अब सारी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि MCQ में आपको कैलकुलेट नहीं करनी होगी, सारी वैल्यू हमेशा क्या होंगी, गिवन होंगी, सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अब डिविडेंड क्या गिवन है आपको, 3। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या गिवन है, 16% मीन्स 0.16। R मीन्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स 0.2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.16। EPS भी आपको गिवन है, अर्निंग पर शेयर 5 है, डिविडेंड पर शेयर 3 है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है मीन्स 0.16। 3 डिवाइडेड बाय पॉइंट, ये पॉइंट हटा देंगे, 300 डिवाइडेड बाय 16, इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। देन इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, 3, 4 8 जा 32, इसको डिवाइड करोगे 4 से 18.6
0.75। यहाँ से एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये 0 आ जाएगा। इसको भी कट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। तो इसको करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 5 में से 3 लेस किया 2 डिवाइडेड बाय 0.16। देन 18.75 प्लस 250 यानी कि 2.5 आ जाएगा और यह आ जाएगा 0.16। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, एक पॉइंट यहाँ एक्स्ट्रा है उसका 0 ऊपर आ जाएगा। कट करके इसको क्या निकाल देंगे हम आंसर। अब क्या आ गया आपके पास 18.75 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 16। 250 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, चाहे तो कट करके सिंप्लीफाई करके जैसे आपको इजी लगे 2 से कट कर लीजिए। 2 1 जा 2, ये यहाँ से 125, या तो यहीं पे काट देते हैं आप, इसको मल्टीप्लाई किए बिना 2 से कैंसिल कर दो या फिर बाद में एक साथ काट दो। 2 8 जा 16, 8 से कट कर दीजिए आप। 8 1 जा 8, कितना आ गया 4, 8 5 जा 40। इस तरह से इसको अब 8 से डिवाइड करना इजी हो जाएगा, ये आ जाएगा 15.625। दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने का पॉइंट का तरीका पता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 8.75 प्लस 15.625, 625 ऐड इसको कर देंगे। 5 2 7 और ये 6 और 12 13 14, 12 13 और ये 8 5 13 14 2 3, 30.37। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो एक बढ़ा के ख़त्म करते हैं, अप्रोक्सीमेशन तरीका होता है। यानी कि आंसर क्या आ गया, इसको प्लस करके 34.38, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो उसमें अप्रोक्स वैल्यू होगी। आंसर क्या हो जाएगा 13.48। इतना बताइए।